اب منسٹر صاحب کہہ رہے کہ میرے احکامات کی روشنی میں سب کچھ فری آف دا کاسٹ ہو رہا ہے. اگر فری آف دا کاسٹ تو آپ ایک تابوت نہیں دیتے مرے ہوئے لوگوں کو, زندہ لوگوں کو آپ کیا خاک دوائیاں دیں؟ جس اسپتال میں بیٹھے ہیں عمر بھائی, یہ سنڈیگم پرووینشل ہاسپٹل ہے, یہ انگریز نے بنا, اس کا شکریہ, اور نئے ہاسپٹل نہیں ہے ہمارے, تو یہ انگریز کا شکریہ, اس نے ہمیں اسپتال پہ جو بندہ سروس دے رہا ہے ایج لمٹ کے اندر ہے, سروس دینا چاہ رہا ہے, اس کو کچھ نہیں دے. جو ریٹائر ہو جائے گا اس کو 12 لاکھ بھی تنخواہ دیں گے, اس کو 7 لاکھ بھی تنخواہ دیں گے. لیکن جو بندے بیچارے بیٹھے ہوئے بھائی جاب دو ہم کام کرنا چاہتے ہیں, نہیں. ریٹائر بندہ دوڑ سکتا ہے صحیح میں, وہ اس کا جو لو فلائٹ پکڑ سکتا ہے, وہ سرجری میں 6 گھنٹے کھڑے ہو سکتا ہے. خدا کے لیے ہاں جو اویلیبل ہیں, جو لوگ اویلیبل نہیں ریپلیس دیں. آپ آ جاؤ, آپ بورڈز میں بیٹھو, آپ پالیسیز بناؤ. یار آپ نے 60 سال میں, انگریز پاگل کا بچہ تھا, اس کو پتا تھا 60 کے بعد انسان سٹیا جاتا ہے. آپ 60 کے بعد گھر والے نہیں رکھتے, آپ اسپتال میں بیٹھے بتاتے ہیں ریسرچ پہ کوئی کام نہیں. پیسہ کس چیز پہ گیا؟ ٹائل لگاؤ, آرٹیفیشل گراس لگاؤ, درخت کاٹو, ٹائل لگاؤ, ٹائل نکالو, ٹف ٹائل لگاؤ, ٹف ٹائل نکالو, گراس ڈالو, گراس نکالو, روڈ ڈالو. سارا ہمارے یہ دنگا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, پورے ہیلتھ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہمارے ہاں بلوچستان میں اس کو ابابکر انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا میں آئی ہے, وہ اس سے ڈائگنوسس میں ہیلپ لے رہے ہیں, ریڈیالوجی میں لے رہے ہیں, ڈیزیزز میں لے رہے ہیں, ٹریٹمنٹس میں لے رہے ہیں, روبوٹک سرجریز میں لے رہے ہیں, ہپ ریپلیسمنٹس, نی ریپلیسمنٹ, اس پہ کام چل رہا ہے. ایگریکلچر میں کام لے رہے ہیں. ہمارے والے کیا کام لے رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسلم راغلے دبیک. منسٹر صاحب یو آر سو اسمال, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور ہائٹ. آپ بہت چھوٹے انسان ہو. یہ آئی میں یہ آئی لائے ڈاکٹر میرے خلاف. دن میرے ڈاکٹرز نے یہ طیہ کر لیا کہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے, اس دن نہ آپ روک سکتے ہو, نہ آپ کئی حکمران روک سکتے ہیں, نہ مقتدر, نہ بڑے بڑے اقتداروں میں نہ یہ ایوان روک سکتے ہیں, کیونکہ میرے ڈاکٹر کا الٹرنیٹو یہاں پہ کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتا, کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا. صرف اپنے آپ کو پہچانو. خدا کی قسم, آپ جس چیز پہ جو بھی آپ مانگو گے یہ آپ کو دیں گے, یہ مجبور ہوں گے. آج لاسٹ دنوں ایک رپورٹ آئی کہ پورے پاکستان سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کی اگزامپل ہمارے ہاں موجود ہے. ہمارے اپنے کارڈک سرجری کے ڈاکٹر چھوڑ کے چلے گئے. اس کے علاوہ جو جا رہے ہیں یو ایس ایم ایل کر کے, فلیپ کر کے, ایم آر سی بی کر کے جا رہے ہیں, وہ الگ ہے. جو یہاں آ کے جوائن کیا, ڈیوٹی کر رہے تھے, وہ چھوڑ کے چلے گئے. کس لیے چھوڑ کے چلے گئے؟ اگر حکمرانوں کی عیاشی کے لیے, ان کی تمام چیزوں کو, ان کی عیاشیوں کو فلفل کرنے کے لیے پیسہ ہے, ان کی کرپشن کے لیے پیسہ ہے. خدا را ہماری زبانیں نہ کھلواؤ کہ برج العرب میں پھر کس کس کا فلیٹ ہے, پھر ہم وہ بھی یاد کریں گے. لندن کے اندر جس نے فلیٹ لیا ہے, جس اسکوائر میں لیا ہے, وہ بھی بتائیں گے. جنہوں نے اسلام آباد میں جن جن لوگوں کو فلیٹ دلوائے ہیں ان کے بھی نام بتائیں گے, اور جنہوں نے اسلام آباد کے ہائی اسکوائرز میں جس سیکٹر میں جس کو گھر دلوایا ہے, پھر اس کا بھی نام لیں گے. پھر ہماری زبانوں کے بھی تالے ہٹ جائیں گے. خدا را میں مجبور نہ کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ آئے ہو, ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا پیسہ کمانے آئے ہو. خدا را ڈاکٹرز کو بدنام نہ کرو, ڈاکٹر کو گالیاں مت. آج کی اس کنونشن کا جو پہلا مقصد تھا وہ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا, کہ تمام ڈاکٹرز کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا کے جمع کرنا, اور وہاں سے سب کی ایک آواز بن گئی. اس میں سب سے پہلے چونکہ ڈاکٹر وارث صاحب نے اور عمر سلطان صاحب نے وہاں سندھ کی ہمیں کچھ ایگزامپلس دی. بالکل دے آر رائٹ. عمر بھائی, آپ اس وقت جس گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں, جہاں یہ پنڈال ہے, جہاں یہ کنونشن ہونے جا رہے ہیں, یہاں پہ ایک نیورو سرجری کا اور ایک ای این ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا, جس کو اس دھوکے سے گرایا گیا کہ یہاں پہ سرجیکل ٹاور بنایا جائے گا. اور جس شخص نے یہ دھوکہ اور یہ فریب لوگوں کو دیا, یہ ٹاور بغیر ٹینڈر اور ٹھیکے کے گرا دیا گیا. پھر اس کا جو ملبہ تھا, وہ سارا ملبہ بیچ کے جو کہا گیا, آج وہ شخص
डीजीपी की पोस्ट पे बड़ा जवान है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं कि हमारी क्या हालत है। तो इन बातों को आगे लेके चलते हुए सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूँ। अभी चूंकि हम पूरे बलूचिस्तान में फिरे हैं इस कन्वेंशन के हवाले से, तो वहाँ जाके देखी हैं ये चीज़ें। गवादर के अंदर एक हॉस्पिटल है जीडीए का, जो जीडीए चला रही थी, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो हॉस्पिटल इंडस के हवाले हो गया। अब इसके अलावा और भी हॉस्पिटल्स हैं जो इस वक्त इंडस जिनको चला रही है, जिसके अंदर चाबी नोकुंडी के अंदर भी एक 50 बेडेड हॉस्पिटल है, बेकड़ के अंदर भी एक 50 बेडेड हॉस्पिटल है। इस तरह 10 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मैं आपको गिनवा भी सकता हूं कि जो इंडस को दिए जा रहे हैं इन फ्यूचर। कुछ दे दिए गए, कुछ इन फ्यूचर दिए जा रहे। तो और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हमारी ऑन्कोलॉजी की जो वाहिद कैंसर हॉस्पिटल जो बन चुकी है, रेडी है, उसका सारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब उसका भी प्लान कर रहे हैं कि वो इंडस को दिया जाए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई इदारा सीहोर को देते हैं तो क्यों ना आपके अपने जो प्रोफेशनल लोग हैं, इसमें हमारे मैनेजमेंट के भी लोग हैं, जनरल कैडर के भी लोग हैं। अगर इंस्टीट्यूट्स हैं तो हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचिंग कैडर के लोग हैं, वो उसको रन करेंगे। अगर जनरल हॉस्पिटल्स हैं आप उनको हैंड ओवर करें। लेकिन मसला कहाँ आता है कि ये सिलसिला कहाँ से आता है और कहाँ चलता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, CLF। ये CLF आप अंदर जाएंगे बहुत अच्छा है। जो भी ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन इसको विजिट करने आता है तो वो कहता है ऊपर जो वार्ड है, जो सिविल अस्पताल का जो चिल्ड्रन वार्ड है, वो बहुत गंदा है, लेकिन जो नीचे वार्ड है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का, वो बहुत साफ है। वहाँ मेडिसिन भी अवेलेबल है, वहाँ लैब्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं करता। ज़रा ये तो देखें, CLF का जो फंड था, जो पिछले सालों 19 करोड़ था, इस साल उसको 32 करोड़ कर दिया गया, जो कि आपके शायद सिविल हॉस्पिटल के पूरे बजट से ज़्यादा है, जो 900 बेडेड हॉस्पिटल है। अब ये एक तर्ज है कि जिसके ज़रिए से आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को नाकाम शो करने का एक तरीकाकार है, जो प्राइवेटाइजेशन का पहला कदम है। हालांकि अगर चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन को देखा जाए, नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स, नॉर्थ अमेरिकन, ये नोट कर ले, नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स चाइल्ड लाइफ एक पेशेंट ट्रीट करती है, उसके बदले उसको $10 प्रोवाइड करती है। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट 32 करोड़ प्रोवाइड करती है। और जो आपका अपना चाइल्ड जो इंस्टीट्यूट है, जो चाइल्ड इंस्टीट्यूट, जो ये CHQ के नाम से इसको चाइल्ड इंस्टीट्यूट इन्होंने डिक्लेयर किया है, उसका पूरा बजट 35 करोड़ है। तो ये नाइंसाफी देखें, ये 20 करोड़ का, 32 करोड़ का जो 20 बेडेड चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और वो मोर देन 100 बेड्स का इंस्टीट्यूशन, बजट एक जितना, बल्कि इसका डबल ज्यादा है, क्योंकि इसके लिए डॉलर्स में भी आ रहा है, गवर्नमेंट भी दे रहा है, चैरिटी भी ले रहा है। लेकिन फिर कहते हैं इसकी सफाई अच्छी है, ट्रीटमेंट पे फिर भी बात नहीं होती, ऑडिट पे फिर भी बात नहीं होती। वहाँ 3 ऑडिट होते हैं, जहाँ मेरा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या सर्वेंट चलाता है, और यहाँ पे प्राइवेट बंदे को बिठा के करोड़ों रुपए दे के उसके बावजूद भी कहा जाता है कि मेरा डॉक्टर नालायक है और आपका डॉक्टर लायक है। इस्माइल साहब, आपने पाक उमान हॉस्पिटल की बात की। मैं सिर्फ अभी तक पाक उमान हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, मैं आपको इतनी कोयटा शहर के अंदर हॉस्पिटल्स की एग्जांपल देता हूँ। जो जीडे गवादर में जब इंडस को दिया गया, उसका बजट 1 अरब 30 करोड़ है, और इस साल उसने डिमांड किया कि मुझे 30 करोड़ एक्स्ट्रा दिए जाएं। 1 अरब 30 करोड़ में नहीं चल सकता ये हॉस्पिटल 50 बेडेड। ये हमारा बिनक जो किडनी सेंटर है, ये मोर देन 100 बेड्स है इसके
अंदर इस वक्त, और इसका टोटल बजट 48 करोड़ है। और इसके फंक्शन को और उसके फंक्शन को कंपेयर करें, इन्होंने कितना ट्रीटमेंट दिया, इंडस वालों ने कितना ट्रीटमेंट दिया, इन्होंने कितनी सर्जरीज की है, इंडस वालों ने कितनी सर्जरीज की है, इनका भी ऑडिट करें, उनका भी ऑडिट करें। इनके तो 10-10 ऑडिट करते हैं, 10-10 महीने फंड्स रोकते हैं, लेकिन वहां पे चूंकि आपने प्राइवेट इदारे को दे दिया, वहां पे वो आपकी ठेकेदारी, आप उसके पार्टनर्स हो, तो लिहाजा आप उसको 1 अरब 60 करोड़ भी दोगे, उसको 2 अरब भी दोगे। जिस तरह बेकर में इंडस को आपने 1 अरब रुपए दिया। ऑन दी अदर एंड गौस बख्श रैसानी ऑटोनोमस बॉडी है, उसका 22 करोड़ का बजट है, और इसी तरह पाक उम्मान का 27 करोड़ का बजट है। तो इस तरह अस्पताल नहीं चलते हैं चंदे से, जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ पहला कदम है। पहले ये क्या करेंगे, लोगों के माइंड के साथ दे आर प्लेइंग। वो कहना चाहते हैं कि आप अगर गवर्नमेंट अस्पताल जाओगे, इम्प्लांट खुद खरीदोगे, दवाई खुद खरीदोगे, सर्जरी मुफ्त में होगी, लेकिन उसकी छोटी सी फीस भरनी होगी। आपने अपने टेस्ट कराने होंगे, छोटी सी फीस होगी, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, छोटी सी फीस होगी। लेकिन अगर इंडस जाएंगे, आपका सब कुछ फ्री होगा, आपको दवाइयों के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, आपको टेस्ट के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। इस तरह यहां से लोग ये सोचेंगे यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना जाऊं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जाऊं। 10 साल बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल आपको बोलेगा अब मुझे गवर्नमेंट बजट नहीं दे रही, पैसा आपने देना है। फिर ये आपका गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, इनके अंदर ये कहेगी इसके अंदर इतने पेशेंट्स नहीं है जितने एम्प्लॉइज हैं, फिर उन एम्प्लॉइज को मैं कैसे संभालूंगा, उनको कैसे बजट दूंगा, पेशेंट तो इसके अंदर आते नहीं है। तो वो अस्पताल बंद करके वो भी ठेकेदारों के हवाले करेगा। 10 साल के बाद आपका सारा सिस्टम प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो खुदारा इसको समझे, ये पूरे प्लानिंग के साथ आपके खिलाफ लगे हुए हैं। अब ये बदबख्ती है, हम कह रहे हैं कि एक चीज आपने एग्रीड किया है, वो आपके सीएम ने भी एग्री किया है कि एचओ की पे बाकी सूबों के इक्वल करो। वो हमारे डॉक्टर्स है, वो हमारा बेस है, वो हमारा फाउंडेशन है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ठस से मस नहीं होती। मसला क्या है, क्योंकि उनको अरबों का करप्शन नजर नहीं आता। उनको जो करप्शन नजर आती है आलिया, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो तो सारा मनबा एडी फाउंडेशन है, जो पूरी दुनिया में काम करती है चैरिटी का, और वो सारी दुनिया उसे मानती है। उसके मुलाजिम पे 2000 का करप्शन डाल के सारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ी जिम्मा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मिनिस्टर साहब आप तो कह रहे थे कि मेरे हक, अब मिनिस्टर साहब कह रहे कि मेरे अहकामात की रोशनी में सब कुछ फ्री ऑफ द कास्ट हो रहा है। अगर फ्री ऑफ द कास्ट तो आप एक ताबूत नहीं देते मरे हुए लोगों को, जिंदा लोगों को आप क्या खाक दवाइयां देते? हमें बार बार ये कहा जाता है कि अस्पतालों में काम हुआ है, काम हुआ है, काम हुआ है। ठीक, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम मान जाते हैं काम हुआ है। क्या काम हुआ है? टाइल लगे, आर्टिफिशियल ग्रास लगे। यो पागल के बच्चे, आर्टिफिशियल ग्रास इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। यहां आप इसको सफाई कैसे करोगे? अब जाके देखो वो मट्टी उसके ऊपर पड़ी हुई है, उस पे इन्फेक्शन एक दफा लग गया फिर हटेगा नहीं। पानी आपके अस्पताल में है नहीं कि सुबह शाम उनको धो लो। ऊपर से कहते हैं हमने एंटीसेप्टिक और पता नहीं कौन से टाइल लगाए। मेरे ख्याल से कोयटा में तो मैंने एंटीसेप्टिक टाइल किसी रोड पे तो नहीं देखे। और मैंने इन कराची वालों से पूछा आपके यहाँ एंटीसेप्टिक टाइल फैक्ट्रियां हैं? तो ये भी बेचारे परेशान भी एंटीसेप्टिक टाइल। हाँ, फ्लोरिंग हमने सुनी है आईसीयू के अंदर, आईसीयू बनाएंगे। अभी हमने पूरे बलूचिस्तान का दौरा किया, वहां पे यूएनडीपी से और यूनिसेफ से ऑक्सीजन के प्लांट्स लगवाए गए। यूएनडीपी और ऑक्सीजन के यूनिसेफ से ऑक्सीजन के प्लांट्स लगवाए गए। लेकिन जब इधर पता किया तो सुनने में यही आ रहा है कि इन प्लांट्स का पैसा भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट हड़प कर गई है। बनवाया है एनजीओ से और पैसे इन्होंने हड़प कर दिए। 32 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आईसीयू बनाए हैं, 32 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आईसीयू बनाए हैं।
इस वक्त ये पूरे पिंडाल को बल्कि पूरे मजमे से बलूचिस्तान में मुझे आप बता दें, आप में से कोई दरमियान से खड़े होकर बता दें कितने इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने आईसीयू की ट्रेनिंग क्रिटिकल केयर की कंप्लीट की। आप में से कोई खड़े होकर मुझे बता दें। एक यूसुफ साहब हैं जो कंप्लीट करके आ चुके हैं, 2 बंदे हैं ऑनलाइन, उनमें से एक बंदा रिसेंटली गया है, सेक्रेटरी साहब ने उसकी डेपुटेशन कैंसिल करवा दी कि भाई हमें जरूरत नहीं है, और 32 डिस्ट्रिक्ट में आईसीयू बना है। ये अकल का लेवल, हम किससे गिला करें, किससे बात करें, किससे डिस्कशन करें। अब ये हेल्थ बनाएंगे, ये हेल्थ का निजाम ठीक करेंगे। अस्पतालों के अंदर चले जाएं, मेडिसिन अवेलेबल नहीं। जो मेडिसिन के ऊपर करप्शन हो गई वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो अब दोहराने की जरूरत नहीं। मेडिसिन जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं, उसके ऊपर भी हम डिटेल में जा चुके हैं। अगर आप नहीं मानते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का अपना साइट है, उस पर विजिट करें, तमाम हॉस्पिटल के लिस्ट मौजूद है कि फिर उसका रेशो निकाले, जो एमएसडी का लिस्ट है इनको कंपेयर करें कि कितने परसेंट। अगर किसी भी हॉस्पिटल में, जो मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 90% तक मेडिसिन दे चुके हैं, अगर 10% से ज्यादा मेडिसिन किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल था, मैं पूरा जोन बलूचिस्तान छोड़ के जाने को तैयार। मैं अपने आप को सेल्फ एग्जाइल में किसी और सूबे में भेज दूंगा। ये मेरा चैलेंज है इनको। मैं पहले भी इनको चैलेंज कर चुका हूं। पूरे बलूचिस्तान में किसी एक हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक के इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्थोपेडिक के इम्प्लांट्स ये ला के दिखा दे कि ये यहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा कि आके हमारा सर भी काट दे, हम तैयार हैं, लेकिन ये दिखा तो दे। हम जब भी घूमते हमें सिर्फ करप्शन नजर आती, हमें सिर्फ करप्शन नजर आती। ये एडाक जो आप लोग देख रहे हो इस वक्त सूबे में, ये हब जाके हमें समझ आ गई। एडाक बेसिकली करप्शन का एक नया तरीका है। और 6 महीने बाद एडाक अनाउंस करो, फिर चंद लोग आके बैठे उसकी इंटरव्यूज करें। इंटरव्यूज की सरबराही कौन कर रहा है? एफसीपीएस आपके डॉक्टर्स का, मेडिकल अफसर आपके जो डॉक्टर्स हैं उनका इंटरव्यू कौन ले रहा है? डिस्ट्रिक्ट में डीसी लेता है, डिवीजन में कमिश्नर लेता है। आर दे डॉक्टर्स? डिविजनल डायरेक्टर एमएसडीएचओ साइड पे वैसे बैठे कमिश्नर के सामने। तो अभी मैं क्या बात करूं, मेरे डॉक्टर से मैं नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन इनको बोलने की तौफीक भी नहीं होती। इनमें से अक्सर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, या इस पंडाल में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा एक डॉक्टर छुट्टी पे गया था तो डीसी ने उसे कॉल किया, संडे का दिन था, कहता है कि एमएस साहब आप कहाँ पे हैं? उसने कहा मैं फातिया पे गया था, रास्ते में हूँ, वापस आ रहा हूँ, सुबह निकला हूँ, अभी तक दोपहर का टाइम है, वापस आ रहा हूँ। तो उसने कहा आप अपनी स्टेशन छोड़ के कैसे गए, मुझे इन्फॉर्म किए बगैर? तो उस एमएस साहब ने कहा कि ये छुट्टी का दिन था, मैं आपका बाउंड नहीं हूँ। उसने कहा नहीं, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। उसने कहा डीसी साहब आप आ जाए, इधर फिलानी जगह पे रोड बंद है, अपना काम कर रहे, रोड खुलवाए, मुझे छोड़ दे। फिर डीसी साहब अगले दिन आते हैं, अस्पताल में इंटर हो जाते हैं, फिर उसे कहते हैं आपका डॉक्टर एब्सेंट है। उसने कहा एब्सेंट नहीं है, वो राउंड कर रहा है। कहता नहीं मैं गया हूँ, ओपीडी में नहीं है। कहता ये टर्शरी केयर आपने बनाया है, टर्शरी केयर को आप जानते ही नहीं हो, यहाँ पे पीजी है ही नहीं। राउंड भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर या सीनियर रजिस्ट्रार करता है, और पेशेंट भी वही एडमिट करता है, ओपीडी भी वही करता है। वो एक बंदा होता है, 2 बंदे होते हैं। वो इस वक्त राउंड कर रहे हैं, वो 9 बजे ओपीडी में आएगी या 10 बजे आए। कहता नहीं मैं आया हूँ, ये एब्सेंट। कहता आप मुझे रिटर्न में लिख के दे दे, मैं देखता हूँ कि उसके ऊपर एब्सेंट का ला लगता है या डिले का ला लगता है, आपके कहने पर मैं नहीं करूँगा। फिर उसने उस एमएस साहब को, फिर डीसी साहब ने एक दफा एक मजमे के अंदर बुलाया, फिर उसे कहा कि हम कल से आएंगे, लेडीज वाले डॉक्टर्स की अटेंडेंस लगाएंगे। तो उसने कहा डीसी साहब आप आके मेरी कुर्सी पे बैठो, लेडीज वाले ओपीडी करें, हम चले जाते हैं, खुदा हाफिज। तो हम में से अगर हर डॉक्टर उस तर्ज पे बोलना शुरू कर दे, फिर वो ये आपके सामने कभी खड़े नहीं हो। They are our brothers. We consider them son of soils, daughter of soils. वो हैं, हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो काम, जो हक मेरे डॉक्टर का है वो उसे दो। जो हक उसका है उसको मिलना चाहिए, उसको 1000 मुबारक। हम उनके किसी इंटरव्यू में नहीं जाते, लेकिन ये है कि अगर वो बैठे होते हैं, इंप्लीमेंट करना जानते हो, तब तो बेहतर बात थी। लेकिन मसला ये है कि वो हर चीज के अंदर आके ठांगड़ाई करते हैं। हम सीएम के साथ बैठे हुए थे, सीएम से हमने कहा
हमारा एक एक्ट बना हुआ था, जो एक्ट हमें दिखाया गया वो एक्ट सिरे से ही तब्दील कर दिया गया, जो हॉस्पिटल्स के लिए एक्ट बनाया गया था उसका, हालांकि मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे बहस किया, उस पे कई पॉइंट्स के ऊपर बहस हो सकती है। मैंने एक पॉइंट पे मैंने कहा इसका जो हेड है, चेयरमैन है, वो प्रिंसिपल जो बोलाम मेडिकल कॉलेज कोयटा में और जो बाकी मेडिकल कॉलेज पेरिफेरी में उनका वही प्रिंसिपल चेयर करेगा चेयरमैनशिप। तो उन्होंने उसको हटा के सेक्रेटरी साहब को चेयरमैन डाल दिया। तो मैंने कहा हमारे ये पीजीएमआई का स्टीयरिंग कमेटी का 20 बंदों का बोर्ड है, 20 बंदों का, लेकिन जो भी इशू आप पीजी का लेके जाएं तो वो सब कहते हैं सेक्रेटरी नहीं मानता, सेक्रेटरी नहीं मानता। मैंने कहा भाई सेक्रेटरी है, उसका एक वोट है, उसको ये अख्तियार नहीं है, मेंबर जो वोट करेंगे वो फैसला होगा, ये कौन सी बात है, हर बात सेक्रेटरी नहीं मानता। ये मैंने सीएम को सामने सामने कही कि आपका सेक्रेटरी अपनी अना के अंदर गिरा हुआ है, वो कहता है मैं सबसे सुपीरियर हूँ, आई एम दी अथॉरिटी, मैं जो बात करूंगा वो मानी जाएगी, जो डॉक्टर बात करेगा वो 20 ग्रेड का प्रोफेसर भी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो मैनेजमेंट कैडर का हो, वो आपको एज अ डॉक्टर भेड़ बकरियां डील करता है। तो लिहाजा खुदा रहा अपनी डिग्निटी को ऐसे फरोख्त, सरे बाजार फरोख्त मत होने दो। हम रहे न रहे, ये दोस्त बार बार जब भी हमारी वाइडिया की जो डिस्कशंस होती रही हैं, मैं इन दोस्तों को एक बार फिर थैंक यू करना चाहता हूं कि वहां से ये यहाँ आए और सिर्फ हमारा मुद्दा सुनने आए। जब हम इनके पास वहां गए तो वहां पे भी इन्होंने हमें वेलकम किया, इन्होंने कहा हमारे फोरम पे आपके साथ खड़े हैं तो कम से कम हम तो इकट्ठे हो जाएं, हम तो अपने इख्तिलाफात खत्म करें। मेरे बहुत सारे पीजीज हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। हम गवर्नमेंट से कहते हैं जो जॉब्स अवेलेबल हैं, अभी तक हमने न्यू क्रिएशन की बात नहीं की, आप सबको बता रहा हूं, हमने न्यू क्रिएशन की अभी तक बात की ही नहीं है। हमने कहा जो पोस्ट आपके साथ अवेलेबल है, जिन पर आपने एडाक पे लोगों को रखा हुआ है, जिसको वो आपकी कमाई का जरिया बने हुए हैं, ये सारे पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन भेजो ताकि मेरे पीजी, मेरे एचओ जो फारिग हो चुके हैं उन सबको जॉब्स मिल जाए। और इन्होंने एग्री किया हमारे साथ, इन्होंने रिटन एग्रीमेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतने खुद को अनापरस्त समझते हैं। तो फिर ये याद रखे, फिरौन से बड़ा अनापरस्त या फिरौन से बड़ा बागी शायद जमाने ने कभी देखा हो। तो फिर वो जब चले गए तो आपकी भी ये तख्त, ये ताज, ये खड़े होने वाले नहीं हैं, तो फिर आप इनको संभाल नहीं पाओगे। जिस दिन मेरे डॉक्टर्स ने ये तैयार कर लिया कि हम अपना हक लेके रहेंगे, उस दिन ना आप रोक सकते हो, ना आप कई हुक्मरान रोक सकते हैं, न मुक्तदिर, न बड़े बड़े इक़्तिदारों में न ये ऐवान रोक सकते हैं, क्योंकि मेरे डॉक्टर का अल्टरनेटिव यहाँ पे कोई नहीं है। कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। सिर्फ अपने आप को पहचानो। खुदा की कसम, आप जिस चीज पे जो भी आप मांगोगे ये आपको देंगे, ये मजबूर होंगे। आज लास्ट दिनों एक रिपोर्ट आई कि पूरे पाकिस्तान से लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे अपने कार्डियक सर्जरी के डॉक्टर छोड़ के चले गए। इसके अलावा जो जा रहे हैं यूएसएमएल करके, फ्लैप करके, एमआरसीपी करके जा रहे हैं, वो अलग है। जो यहाँ आके ज्वाइन किया, ड्यूटी कर रहे थे, वो छोड़ के चले गए। किस लिए छोड़ के चले गए? अगर हुक्मरानों की अयाशी के लिए, इनकी तमाम चीजों को, इनकी हयाशियों को फुलफिल करने के लिए पैसा है, इनकी करप्शन के लिए पैसा है, खुदा रहा हमारी जबानें न खुलवाओ कि बुर्ज अल अरब में फिर किस किस का फ्लैट है, फिर हम वो भी याद करेंगे। लंदन के अंदर जिसने फ्लैट लिया है, जिस स्क्वायर में लिया है, वो भी बताएंगे। जिन्होंने इस्लामाबाद में जिन जिन लोगों को फ्लैट दिलवाए हैं उनके भी नाम बताएंगे, और जिन्होंने इस्लामाबाद के हाई स्क्वायर्स में जिस सेक्टर में जिसको घर दिलवाया है, फिर उसका भी नाम लेंगे। फिर हमारी जबानों के भी ताले हट जाएंगे। खुदा रा में मजबूर न करो। हम समझते हैं कि आप आए हो, हमने आपको पहले भी कहा पैसा कमाने आए हो। खुदा रा डॉक्टर्स को बदनाम न करो, डॉक्टर को गालियां मत दो। मैं सिर्फ एक पॉइंट और जिस पे बात करना चाहूंगा, उसके बाद डॉक्टर हफीज आके करारदादे मंजूर करेंगे, फिर उसको लेकर चलेंगे। एआई का नाम आपने सुना होगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में उसको अबाबकर इंटेलिजेंस कहा जाए।
अबाबग्र इंटेलिजेंस, अबाबग्र एक शख्स तो जिसने बैठ के सारे डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम करने, वो नहीं, वो तो मोहरा है। असल कहानी कुछ और है सर, वो मोहरा है, नाम इसलिए हमने मोहरे पे रखा है, वो मोहरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में आई है, वो उससे डायग्नोसिस में हेल्प ले रहे हैं, रेडियोलॉजी में ले रहे हैं, डिजीजेस में ले रहे हैं, ट्रीटमेंट्स में ले रहे हैं, रोबोटिक सर्जरीज में ले रहे हैं, हिप रिप्लेसमेंट्स, नी रिप्लेसमेंट, उस पे काम चल रहा है, एग्रीकल्चर में काम ले रहे हैं। हमारे वाले क्या काम ले रहे हैं? डॉक्टर असलमा रागले डब्बा एक, खुदा को मानो, इसलिए कहते हैं जाहिल, मतलब ये जाहिल लोगों को अगर हुकूमत मिलती है ना, ये पागल हो जाते, छोटे लोग हैं ना। मिनिस्टर साहब, यू आर सो स्मॉल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर हाइट। आप बहुत छोटे इंसान हो। ये आई, मैं ये आई लाए, डॉक्टर मेरे खिलाफ हो गए, डॉक्टर बादशाह ने कैमरा तोड़ दिया। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट डॉक्टर कि भाई आप, डॉक्टर बादशाह ने कैमरा तोड़ दिया, कैमरे की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी थी? पैसा तो आप ले रहे, कैमरे की हिफाजत का भी पैसा रखते, चौकीदारी का पैसा आप ले रहे, सिक्योरिटी आपने तैनात की है। अगर डॉक्टर बादशाह कैमरा तोड़ रहा है तो आप उसकी हिफाजत करो, डॉक्टर बादशाह को सजा दे रहा हो। नहीं, क्यों? इनके पास दिखाने को कुछ नहीं, क्योंकि इनकी करप्शन इतनी लंबी हो चुकी है, सिवाय टाइल मालिश पालिश के अलावा कुछ नहीं है। अब ये एआई को सामने ले, अच्छा एआई में दो कंपोनेंट्स है, ये याद रखो। ये आज यहां से करारदाद आपने मेरे साथ माननी है इसके ऊपर, ठीक है? इन्होंने कहा अटेंडेंस, हमने कहा आपने बायोमेट्रिक लगा लिया, उसके ऊपर जो आपने पैसे का है उसका पहले हिसाब लाओ। नहीं, उसका हिसाब नहीं, ठीक है मत दो, कोई मसला नहीं, यहाँ का पैसा है, अवाम के टैक्स का है, अवाम को परवाह नहीं, हमें परवाह नहीं, ठीक है आपने कहा दिया, खुदा। एआई के ऊपर पहले 1 अरब 20 करोड़, अब उसको 5 अरब कर दिया। एक एप्लीकेशन 4 कैमरा, एक एप्लीकेशन 4 कैमरा। अब सिविल अस्पताल का कैमरा खुशदार शिफ्ट करो, बीएमसी का कैमरा तुरबत शिफ्ट करो, तुरबत का कैमरा चमन शिफ्ट करो। ये इनका एक अजीब कहानी शुरू हुई। हमने कहा हर चीज का, देखिए दुनिया में डेटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं, इंटरनेशनली डेटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं जो अप्रूव्ड है। पाकिस्तान में इस वक्त डेटा प्रोटेक्शन का जो लॉ है वो अंडर प्रोसेस से ड्राफ्टिंग, कंप्लीट नहीं हुआ, पास नहीं। तो जब तक मुल्क में कानून नहीं होगा तो वो कानून हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूटिलाइज करेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ होगी। ये जो एप्लीकेशन है, फिर मैं जब बात करता हूँ फिर कहते हैं यार ये अजीब बंदा है, अजीब बात करता है। बंदों के नाम जब लेते हो तब भी नाराज होते, नहीं लेते हो खाना खराब चोरी नहीं छोड़ते। तो बलूचिस्तान का बहुत बड़े टॉप लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन का बैठा हुआ है, केपीके से एक बंदे को इंपोर्ट करते हैं, एआई एप्लीकेशन लेके आ रहा है। भाई एआई क्या होगा? हम समझे एआई आप क्लिक करोगे, नर्स आएगी, डॉक्टर आएगा, सिरिंज निकलेगा, दवाई आएगी, लोग ट्रीट होंगे। ये बदबख्त तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये एआई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ही नहीं है। और ये आपके डेटा का एक्सेस लेगा, आपके मोबाइल का एक्सेस लेगा, आपके गैलरी का एक्सेस लेगा, आपके फोटोज का एक्सेस लेगा, आपकी वीडियोस का एक्सेस लेगा, और आपको कुछ भी पता नहीं होगा। न इसके सर्वर का पता है, न इसके क्लाउड का पता है। अभी भी आप जाके एआई फ्रेम्स पे क्लिक करें, आपको कुछ नहीं है इसके अंदर। न इनके पास रजिस्ट्रेशन है, न इनका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है, न इनका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है। और इसके ऊपर दुनिया का सबसे सेंसिटिव डाटा और फेस रिकॉग्निशन का डाटा हमारा दिया जा रहा है कि ले लो फ्री ऑफ द कॉस्ट। ये बलूचिस्तान के डॉक्टर भेड़ बकरियां, ये बलूचिस्तान के टीचर्स भेड़ बकरियां, इनका डाटा शिफ्ट करो। कल वो शख्स जो आज करप्शन कर रहा है, जो आज सरेआम करप्शन कर रहा है, बगैर
जो है 2 नंबर टेंडर और ठेकों के जरिए से AI का तमाशा कर रहा है, तो वो मेरा और आपका डेटा किसको बेचेगा किसको नहीं बेचेगा मुझे और आपको पता नहीं है। वो कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करेगा, कहाँ पे अपने मकासद के लिए यूज करेगा, मुझे और आपको खुदारा कुछ पता नहीं होगा। तो लिहाजा जो एप्लीकेशन है या जो ये लिंक भेज रहे हैं, तमाम MSS को कहता हूँ खुदारा अपना गला बंद न करे। बहुत जल्द इसके ऊपर हम एप्लीकेशन पहले एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू फिर कोर्ट में इसको चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, इसका कोई, ये अनसेफ है, ये अनरजिस्टर्ड है और सिर्फ चंद बंदों ने इसके ऊपर करप्शन का अपना बाजार गर्म किया हुआ है। और ताकि आप उसकी करप्शन पे बात ना कर सको तो ये लोग कहते हैं हम AI अटेंडेंस लेकर आए। हाँ, AI जितने कैमरे लगा सकते हैं ये लगा ले, रजिस्ट्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उस कैमरे के सामने खड़े होंगे। ऐसा नहीं होगा 1000 मुलाजमीन है, 2 कैमरे हैं, 3-4 घंटे तक लाइन में खड़े हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट के सामने कैमरा लगाओगे। हम कैमरों से नहीं डरते, हम ड्यूटी से नहीं डरते, हम आपकी अटेंडेंस से नहीं डरते, लेकिन आपका करप्शन फिर भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप सब मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक है, डॉक्टर्स हैं, देखिए तरक्की होती है या पेशेंट की जो फलाह व बहबूद के लिए काम होता है। इस वक्त हमारी एकेडमिक्स में कोई काम नहीं हुआ, हमारी रिसर्च पे कोई काम नहीं हुआ। पैसा किस चीज़ पे गया? टाइल लगाओ, आर्टिफिशियल ग्रास लगाओ, दरख्त काटो, टाइल लगाओ, टाइल निकालो, टफ टाइल लगाओ, टफ टाइल निकालो, ग्रास डालो, ग्रास निकालो, रोड डालो, सारा हमारे ये धंधा चल रहा है, ठीक है, पूरे हेल्थ में। अब हमारे इंस्टीट्यूशन है, BICBD ये बनाना चाह रहे हैं NICBD के तर्ज पे, बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब कह रहे बना रहे तो NICBD की तर्ज पे, लेकिन लोगों की इंडक्शन का कोई प्लान मौजूद नहीं। इन लोगों को क्यों इंडक्ट नहीं कर रहे, बता भी नहीं रहे। इसका बजट कितना होगा पता नहीं। तर्ज पे किसके? NICBD की तर्ज पे है तो NICBD का अपना एक्ट मौजूद है, उसके पैटर्न पे इसको शिफ्ट करो, उसके अपने सर्वर स्ट्रक्चर मौजूद है, उस पर शिफ्ट करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम आपकी राह में रुकावट होगी। हमारे जितने लोग अच्छा इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशन टोटल पूरा आपका NICBD के तर्ज पे बना रहे हैं। SR कितने? 10। शेख जैद अल नायन कार्डियोलॉजी SR कितने? 4 है। क्या इंस्टीट्यूशन? 4 SR से कभी इंस्टीट्यूशन बने, 4 AP से कभी इंस्टीट्यूशन बने हैं। 4 SR और AP तो एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए काफी है। मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 2 का तो माशाल्लाह बिल्डिंग गायब है, लोरलाई का थोड़ा बहुत दीवारें चल रही, तो फौजदार का तो बंद है। पैसे एडवांस मोबिलाइजेशन कीमत में अरबों रुपए गायब हो गए। अब CM साहब ने आके कैद कर दिया कि भाई जरूरत नहीं है तो बंद कर दो साहब। इधर मिनिस्टर खड़े होकर कहता है हमें 10,000 डॉक्टर्स की जरूरत है। CM कहता है कि कॉलेज बंद करो, तो डॉक्टर्स कहां से लाऊंगा? परचून की दुकान से डॉक्टर निकलेंगे? मतलब इनको समझ ही नहीं आती है ये बात कैसे करते हैं। इधर CM साहब आके खड़े हो गए, सूबे के CM है, अच्छे बुरे फिर भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कि कई सालों बाद हमने कैथ लैब का इफ्तिताह किया। पहले तो बात गलत है, लेकिन चलो उन्होंने कह दिया मान लेते हैं, जरा शर्म तो कर। 1935 में अस्पताल बना है, कैथ लैब 78 साल बाद बन रहा है, फिर भी खुशी का इजहार कर रहा है, शर्म से मर जाता। मेरे हॉस्पिटल में एक सर्जिकल टावर बना 400 बेडेड, जिसके अंदर 100 बेडेड बर्न ICU है, 40 ऑपरेशन थिएटर्स, 40 ऑपरेशन थिएटर्स। हमारे यार लोग सर्जिकल टावर तो नहीं बनाए, बहरहाल ट्रामा सेंटर बना रहे, जो पहले गेस्टों के तर्ज पे बना था। इंजीनियरिंग उसी की हुई थी, यारों ने ट्रामा अंदर डाल दिया। क्यों? शॉर्टकट चाहते थे, शॉर्टकट में सर्जिकल टावर का पैसा था, कुछ इधर खर्च करो, मालिश करो, कुछ उधर पॉलिश करो, कुछ ट्रामा। अब वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उसके नए दरवाजे निकालो, फिर नए दरवाजे लगाओ, नई टाइलें निकालो। अभी तक उसमें एक दिन भी कोई काम नहीं हुआ, कोई शख्स नहीं किया, उसकी नई टाइलें निकालो, दूसरी नई टाइलें लगाओ। क्यों? इसको हम ट्रामा के तर्ज पे बनाए।
वो टाइलें लगने से ट्रामा के तर्ज पे नहीं बनेगा। ट्रामा के तर्ज पे तो वो बिल्डिंग नहीं बनना था, ट्रामा के तर्ज पे तो ऑपरेशन थिएटर्स नहीं बनना था, वो बनाए गैसों के तर्ज पर है। आप अभी बूढ़ी गोड़ी को जितना सुर्खी लगाओ, जितना पाउडर लगाओ, वो तो है, तो गैसों का ट्रामा कैसे बनाओगे? ठीक, चले ट्रामा बना लिया। ये ट्रामा 2016 से बनाया हुआ है, जबरदस्ती करा के इन्होंने स्टार्ट कर दी। ट्रामा का अभी तक ना एक्ट है ना स्ट्रक्चर है। ये ट्रामा में काम करता है न्यूरो सर्जन, 5 साल से काम कर। इसका क्या है? मेडिकल अफसर का मेडिकल अफसर। ऐसा क्या काम करते थे? ऐसा सीनियर रजिस्ट्रार का, तो भाई 5 साल बाद वापस मेडिकल अफसर। मतलब हमारे लोग आगे जाते, हम रिवर्स गियर डाला हुआ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में फारो ये दूसरे के बाद तीसरा चौथा गियर है नहीं, बस रिवर्स पे आ जाता है। मतलब एक बंदा 10 साल पहले मेडिकल अफसर लगा है, 20-30 साल बाद भी मेडिकल अफसर है। खुदा रहा उस बंदे ने FCPS किया, काम किया। आप आ जाओ, सेक्रेटरी हेल्थ साहब क्या कहता है? हमने तो इनसे काम लेना है, हमारी मर्जी, हम जिस तरह काम लें। मैंने कहा फिर मुझे एग्जाम्पल आप NICVD की तो मत दो, मुझे एग्जाम्पल गम्बट की तो मत दो। एग्जाम्पल दूंगा, गम्बट का लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन होना चाहिए। अगर वो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन बन के आता है, कहता है आप तो मेडिकल अफसर हो, नाइट ड्यूटी पे बैठो। अगर वो बंदा गया कार्डियोलॉजी में, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी करके आ गया, कहता है आ जाओ, MS साहब कहता है कि आप जो है ना इवनिंग आपकी ड्यूटी है, कैजुअलिटी में बैठो। मतलब खुदा के लिए भाई खौफ करो। समझ नहीं आता है, पूछो, पूछने में कौन सी यार है। हम कभी प्रोफेसर भी पूछ लेता है, यार फिलानी चीज पढ़ के देखो इसमें क्या है क्या नहीं है, नई ट्रीटमेंट आई है, मैंने पढ़ा नहीं है, वो आर्टिकल में तो आप चेक करके देखो। पूछते हैं ना, इसमें शर्म की क्या बात है? आप पूछ लो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाओ। हाँ, अगर समझ आए फिर 2 नंबर ही करो, फिर थप्पड़ मारना हम जानते हैं आपको कैसे थप्पड़ मारना। मसला ये है कि सिस्टम हर 10 दिन के बाद हम यंग डॉक्टर्स निकल रहे हैं, हर 6 महीने के बाद निकल रहे हैं। ये आप जिस अस्पताल में बैठे हैं उमर भाई, ये संडेवम प्रोविंशियल हॉस्पिटल है, ये अंग्रेज ने बनाया, उसका शुक्रिया, और नए हॉस्पिटल नहीं है हमारे, तो ये अंग्रेज का शुक्रिया, उसने हमें अस्पताल दिया। अच्छा, इसमें एक है बर्न सेंटर, एक है ट्रामा सेंटर, अलग अलग बॉडीज है, अस्पताल एक है। एक है CLF, उधर अलग कहानी है, एक है पीड्स वार्ड, उधर अलग कहानी है। मतलब एक अस्पताल में 4 कहानियां, 4 सिलसिले चलते। बर्न सेंटर के अंदर प्रोफेसर की तनख्वाह 12 लाख, SPH के अंदर प्रोफेसर की तनख्वाह 2 लाख, बर्न के अंदर प्रोफेसर की तनख्वाह 3 लाख, CLF में जो मुझे पता नहीं, उसमें तो प्रोफेसर है नहीं, उधर जो है उसकी तनख्वाह 3 लाख है, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन हो मेडिकल अफसर। तो आप मुझे बताओ, इस निज़ाम के अंदर हम कैसे चलाएं निज़ाम?